Hello, my dear beautiful soul family. A very beautiful evening to all of you. Today I'm doing this reading for all of my collective. जहाँ पे कि I wanted to see this whole week. This is like if it is Sunday, then you can relate to this reading whenever you are meeting with this whole week. जो भी आपका week है पूरा, अब उस area of life को देख सकते हो कि what are the things that is going to happen with you और what are the things that is guidance with you. क्या आपके यूनिवर्स गाइड करना चाहता है, क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए, क्या चीज़ें हैं जो आपको ब्लॉक कर रही है, आपके ग्रोथ को ब्लॉक कर रही है, आपको चेंज करने की ज़रूरत है. सो लेट्स सी एंड चेक ऑल दीज एनर्जीज की हम ऐसा क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं with this whole entire week. So I'll pull some tea leaves and tarot card and I'll do this reading for all of you. So to claim this energy, you just need to close your eyes, just connect with your breath, and type 1111 if you're like resonating with it. और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, you can follow me on my Instagram channel, that is Feel It and Heal It 1111. You can follow me on my YouTube page, that is Feel It and Heal It with Divine. और just stay tuned. आप बेल बटन को प्लीज़ प्रेस करके रखिए so that you will get notified about all these upcoming readings and all these upcoming videos whatever I am uploading. So let's start the reading. I wanted to see what is to happen for my collective. There are so many tea leaves that I received. I feel this one. I feel let me keep your tea leaves. So whatever it is written, I'm not going deeper into it, but I'll share it with you whatever I can see it. Let me pull out your tarot cards. Okay, so all these cards are here with me. Let me take a guidance also. Last में मैं guidance लूँगी. What is the guidance for my collective? So first let me start with this reading. The first thing that I can see is you are in a path, you are in a journey where you are feeling like stuck. Okay, so if you're planning to, or if you're like taking a vacation, or if you're like traveling somewhere, it is going to give you that physical clarity, at the same time mental clarity. आपको वो सारे प्रॉब्लम से रिलीफ करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको कुछ ऐसी क्लैरिटी मिलेगी जहाँ से आप अपने सही डिसीजंस ले पाओगे. इट इज़ गोइंग टू हैपन. द नेक्स्ट थिंग दैट आई कैन सी इज़ कि कुछ सिचुएशंस आपके लाइफ में इस वीक में ऐसे होने वाले हैं विच रिक्वायर योर अटेंशन. आपके अटेंशन की ज़रूरत है उन सिचुएशंस को सही से देखने के लिए, सही से गाइड करने के लिए, या सही तरीके से बैलेंस करने की ज़रूरत है उस एनर्जी को. तो अगर कुछ लाइफ के एस्पेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, करियर हम ज़्यादा देखते हैं, बट अगर whatever aspects of your life that is imbalanced right now, you go back to that aspect of your life and see कि आप उस जगह पे आप क्या ऐसा कर सकते हो जहाँ पे आप इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हो. जैसे आप इसको बैलेंस करोगे, आप देखोगे कि इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ न्यू एडिशन टू योर लाइफ. एक नया रास्ता दिखाएगा, एक नया होप देगा और आपको एक नई जर्नी में लेके जाएगा. तीसरी चीज़ जो मुझे दिख रही है, इट इज़ there is some people around you, some people or something or some secrets that is hidden inside of you. Okay, sometimes it happens कि हम भी कुछ चीज़ें ऐसे छुपाते हैं. We feel do you know how anxiety happens? Let me tell you. Anxiety जब भी आपको आए, आप समझ जाओगी
ईदर यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ ऑथेंटिकली, या तो आप बहुत कोई चीज़ ऐसी है जो आप छुपा रहे हो, जो आप दिखाना नहीं चाहते, या फिर आपने बहुत सप्रेस करके रख दिया है कोई चीज़, तो उस जगह पे आपको एंजाइटी वाली फीलिंग होगी। ओके, इफ़ यू डू नो हाउ ऑल दीज सिम्टम्स आर। अगर नहीं है तो आप मेरे कुछ वीडियोस हैं, मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, आप उन वीडियोस को एक बार जाके चेक कीजिए, हाउ टू नो कि आपको एंजाइटी या पैनिक अटैक्स आ रहा है। सो दिस कार्ड इज गाइडिंग मी कि कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स हैं आपके, जो अगर आज नहीं पता चला, या आज आपने उसको ठीक नहीं किया, या फिर आज आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमने पहले से ही एक चीज़ बोला जहाँ पे मैंने बोला कि कुछ सिचुएशंस ऐसे विच रिक्वायर्स योर अटेंशन, दिस सीक्रेट इज दिस सीक्रेट्स कैन हार्म यू। ओके, सो अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया, अगर आपने इसको टेक केयर नहीं किया, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं हार्म करेगा। और अगर आप किसी एल्डरली लोगों के साथ जुड़े हुए हो, या आपके पेरेंट्स हैं, या घर में कुछ ऐसे लोग हैं, या आपके ऑफिस में कलीग्स हैं, कहीं पे भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप ऐसे लोगों के साथ डील करते हो, तो दीज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स इज गोइंग टू गिव यू अ डायरेक्शन, वट एवर दे आर टेलिंग यू एट दिस मोमेंट। आप थोड़ा सा शांत होके उनकी बातों को सुन लो, उनकी बातों को समझ लो। कभी कभी उनकी बातें समझ नहीं आती है उस टाइम पे, बट समटाइम्स इट हेल्प्स अस। तो पे आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक्चुअली मैं होल्ड ऑन करके रख रही हूँ या रख रहा हूँ, और उसको मुझे एक्चुअली छोड़ देना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द ट्रांजिशन मोमेंट। इस टाइम पे आपको वो ओपनिंग होगी, आपको समझ में आएगा कि जिन लोगों की बातें आप सुन रहे हो, जिन लोगों के साथ आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो सकता है कि दे आर द नॉट द राइट वन विच यू वांटेड टू हैव फॉर योर ग्रोथ। सी, इट ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू कॉल, कि हम बच्चों को भी बोलते हैं ना कि आपके फ्रेंड सर्कल सही होनी चाहिए। यू नो, फ्रेंड सर्कल जो होता है वो बहुत ज़्यादा आपको एक्टिवेट, मोटिवेट करता है बहुत सही चीज़ों को करने के लिए। अगर आप सुपर ब्लेस्ड होना चाहते हो ना, चूज एन इनर सर्कल लाइक दिस, कि जहाँ पे आप कुछ ही दोस्त रखो, बट ऐसे दोस्त रखो जहाँ पे कि वो हर टाइम पे गॉसिप ना करे, हर टाइम पे बिलिटल ना करे, हर टाइम पे डीमीन ना करे। एक आदमी नहीं है तो उसके बारे में बात ना करे। दूसरी चीज़ की, अगर आप उसके बारे में बात भी करें तो इट शुड बी लाइक कि यू आर एंडिंग दैट थिंग इन अ वेरी गुड नोट, कि लेट्स वॉक इट आउट, कि क्या हो सकता है, कैसे इस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट टीम, चाहे ये फ्रेंडशिप हो, चाहे ये रिलेशनशिप हो, चाहे पापा मम्मी के साथ, चाहे आपके फ्रेंड्स के साथ, चाहे घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, या ऑफिस में भी। सो अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व नहीं हो किसी और के साथ, तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं। कभी कभी कर्मा पे करते हैं तो बहुत सारे लोग अननेसेसरीली आपके पीछे पड़ जाते हैं, बट इट्स ओके। यहाँ पे बिकॉज यू आर गुड इनफ, आपको पता है दैट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग विद देम, दिस इज द ट्रांजिशन फेज दैट यू आर गोइंग टू गो विद इट। तो आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, वन एट अ टाइम करके। आप हो सकते कभी कि आपके साथ ऐसा भी हो जाए कि आप बहुत सारी चीज़ें तुरंत छोड़ के जाना पड़े, बिकॉज नाउ यू नो कि these things are not good for me, these people are not good for me, whatever I'm doing it is not helping me for my journey, चाहे वो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से है, या फिर रिलेशनशिप, या फिर फाइनेंसेस, जो भी आप कर रहे थे। और जैसे आप जिस मोमेंट पे आप इसको छोड़ दोगे, जिस मोमेंट पे आप इसको रिलीज कर दोगे, उसी मोमेंट से आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आएंगे, बिकॉज नाउ यू नो हाउ टू ग्राउंड योर एनर्जी। नाउ यू आर मेडिटेटिंग, नाउ यू आर डूइंग योर इनर वर्क, नाउ यू डू नो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, नाउ यू हैव द क्लैरिटी, नाउ यू हैव अ पाथ। और उस पाथ में वन डे एट ए टाइम करते करते आप इस चीज़ को पहुँचते पहुँचते इन सारी चीज़ों के पास पहुँच जाओगे। और एक टाइम ऐसा आएगा, आप जिसका वेट कर रहे थे वो खुद ही आपके पास मैसेज कॉल करेगा, वो खुद ही आपको बोलेगा दैट आई वांटेड टू मीट यू, आई वांटेड टू talk to you. Why? Because you're not chasing them. Why? Because you're busy building yourself. Why? Because you are grounding your own energy. You know what is the gray matter, you know what is the black matter, you know what is white, you know what is black, you know what is gray. तो आपको ये कलर, ये 3 कलर से आपको ये समझ में आ गया कि हाउ टू टेक केयर ऑफ माई ओन इमोशंस, हाउ टू टेक केयर ऑफ मी, माई सेल्फ एंड माई ओन इमोशंस इन अ हेल्दी मैनर, इन अ राइट मैनर। क्योंकि अगर मैंने हर टाइम पे नेगेटिव सोचा, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी काम हो, तो उसमें कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ने वाली है। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ आई एम टेकिंग ऑल दोज थिंग्स एंड आस्किंग एंड गिविंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स देम। आप कोई भी रिलेशनशिप को ले लो, उसमें अगर आप उसने उस रिलेशनशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया तो भी वो गिर जाएगा। घर परिवार, चाहे जितनी भी चीज़ें आप देखो अपनी लाइफ में, अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं पे कर पा रहे हो, अगर आप थैंकफुल ही नहीं हो उन चीज़ों के लिए, तो फिर वो कैसे रहेगा। और फ्री चीज़ों को तो हम ऐसे भी नहीं अप्रिशिएट कर पाते हैं,
तो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग ऑल दोज थिंग्स मोर एंड मोर एंड मोर, ताकि आप जब इस जर्नी में आप जाएंगे तो इस जर्नी से आप एक ऐसी जर्नी पे पहुंचेंगे जहाँ पे आपकी वाइब्रेशन रेज होगी और आपके सारे काम ऑटोमेटिकली बनने लगेंगे। और ये सारी चीज़ों की वजह से आप जितनी भी चीज़ें आप चाह रहे हो नहीं हो रहा है, अगर आपका मन दुखी है, आप हर टाइम पे डिसअपॉइंटेड रहते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, थक जा रहे हो उठने के बाद, कुछ भी आपको करने का मन नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। वंस यू स्टार्ट डूइंग योर ग्राउंडिंग, वंस यू स्टार्ट डूइंग योर ऑरा प्रोटेक्शन, वंस यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, ये सारी चीज़ें ठीक होने लगेंगी और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो यू कैन ज्वाइन माई डेली मेडिटेशन सेशंस विच इज़ हैपनिंग लाइक मंडे टू थर्सडे एवरी वीक। ये हर मंथ होता है और आप ये 3 महीने भी अगर आप कंटिन्यूस इस सेशन को कर लेते हो तो यू विल सी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर सेल्फ। आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू टेक केयर ऑफ माई ओन इमोशंस। आई डोंट नीड टू प्रूव माई सेल्फ राइट ऑल द टाइम, आई कैन बी राइट, आई कैन बी रॉन्ग, इट डजेंट मैटर, बट ये है कि प्रोबेबिलिटीज आर देयर कि इफ़ आई डू नो हाउ टू लेट इट ऑल गो, आई कैन बी इन अ वेरी पीसफुल मैनर नो मैटर व्हाट आई एम विथ, है ना। तो जो भी चीज़ें आपके पास है उन सारी चीज़ों के लिए आप शुक्रिया बोलना चालू कीजिए। इवन इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, आप ये रीडिंग सुन रहे हो उसके लिए भी थैंक यू, आपका टाइम निकाल के आप मुझे सुन पा रहे हो। और इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। मेरे चैनल को पसंद करने के लिए थैंक यू। मेरा चैनल तो नहीं बोलूँगी, बट इट इज़ लाइक फॉर एवरीबडी who is wanting to have this healing journey all together। और हीलिंग इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट अ वन डे टास्क। आप एक दिन में हील नहीं हो सकते, आप चाहे कैसे भी सिचुएशन से जा रहे हैं। माई हार्ट गोज टू यू, आई डू नो हाउ समटाइम्स इट फेल्ट कि आप जब अकेले होते हो आपको रास्ता नहीं मिलता। सिचुएशंस बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको समझ नहीं आता व्हाट शुड वी डू। उस टाइम पे कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसे कंटेंट, कुछ ऐसी चीज़ें आपको एक नया होप दे देता है। सो थ्रू दीज कार्ड्स आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि जो भी सिचुएशन से आप आज जा रहे हो, चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जो भी हो, उस टाइम पे जस्ट हैव फेथ कि इट रिक्वायर्स योर अटेंशन फर्स्ट। दूसरा, आप जैसे अपने एनर्जी को बैलेंस करोगे, जैसे आप अपने आप को काम डाउन करोगे, आप अपनी बॉडी में बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्ट वाले हार्मोन्स पैदा करोगे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपकी फाइनेंसेस अच्छे होंगे, डिसीजंस आप क्लियरली ले पाओगे, आप खुश रहोगे इन टोटल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि चाहे कुछ भी कर लो, अगर आप खुश नहीं हो तो वो दिख जाता है, अगर आप खुश हो तो वो दिख जाता है। सो हाउ डज़ इट मैटर कि आप क्या कर रहे हो, बट मैटर इज़ कि क्या आप ये करके लॉन्ग टर्म में खुश हो पा रहे हो या सिर्फ शॉर्ट टर्म में आपको वो खुशी मिल रही है। आस्क योर सेल्फ एंड थिंक वाइज, डोंट गो अदरवाइज। इन एनी केसेस वी आर डूइंग इट अदरवाइज। तो मैं क्विकली एक गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ माई कलेक्टिव? लेट मी टेक अ कार्ड फॉर ऑल ऑफ यू। So the first card is saying projections. Okay, so if you are into some kind of fights lately, if some people are there into your life जो कि आपको लग रहा है कि why they are behaving like this, why they are saying this to you, why they are like complaining you, या कुछ भी नेगेटिव फील हो रहा है या पॉजिटिव फील हो रहा है, in both the cases I just wanted to remind you कि it is your energy. These are your reflections. If you're happy inside, you are going to meet people who are happy outside. If you're grumpy inside, you're going to meet people who are grumpy inside. If you're sad inside, you're going to meet people who are sad inside. और जिसकी वजह से आप जब उसी सेम एनर्जी को प्रोजेक्ट करोगे और सेम काइंड ऑफ लोगों को मिलोगे तो आपको लगेगा ये क्या चल रहा है, मतलब वाई लाइक नथिंग इज वर्किंग। यू नो दैट वीडियो, दैट थिंग कि जब आप का मूड खराब होता है और आप जब रोड पे गाड़ी लेके जा रहे हो एंड यू आर जस्ट सीइंग कि एवरी सिंगल ट्रैफिक सिग्नल इज रेड 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 रेड, और जब आप खुश हो तो देखो हर एक सिग्नल ग्रीन ग्रीन आ रहा है या फिर रेड भी है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज यू आर एंजॉइंग दैट सॉन्ग दैट इज प्लेइंग इन योर कार। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जी कि आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो अंदर से। अगर आपको सही फील नहीं हो रहा है, दिस इज़ द वेरी राइट मोमेंट, यू हैव टू सिट विथ योर सेल्फ, you have to ask yourself कि why am I feeling this thing, how can I feel much better and what can I do to feel better।
तो ये सारी चीज़ें आप जब अपने आप से क्वेश्चन करना चालू करोगे, आपको इसके आंसर्स भी मिलेंगे. सो दिस कार्ड इज़ गाइडिंग यू ऑल थ्रू दिस जर्नी कि आप जो भी सिचुएशन से जा रहे हो अभी, उन सारी चीज़ों को ठीक कीजिए. दूसरा कार्ड भी आ गया था मेरे पास, सो आई विल शो इट टू यू. This is telling you all about that you are clinging into the past. Yes, you are clinging into the past, and remember, whenever you are into the past, it is always going to give you the stress. मैंने बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग किया है, ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग एक बार धोखा खाते हैं या जिनके साथ एक बार बुरा हुआ है, बट दे आर इनटू सो मच ऑफ पेन ऑफ देयर पास्ट कि वो उस पास्ट से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं, इवन इफ इट इज़ मोर देन 5 years. तो सोचो, अगर 5 साल से आप एक ही जगह पे एक ही बीमारी लेके, एक ही प्रॉब्लम लेके, एक ही इंटेंशन के साथ, आप एक ही फीलिंग के साथ चल रहे हो, तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू यू? यू आर नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ योर एनर्जी. आपको क्लैरिटी कैसे मिलेगी? आप चीज़ों को समझोगे कैसे? आप उन चीज़ों से बाहर कैसे निकलोगे? आपको अगर कोई अच्छी चीज़ मिल भी जाएगी ना, तो भी जैसे मैं एक काउंसलिंग कर रही थी, वहाँ पे मैंने देखा था कि दिस गाय वॉज लाइक बीटेड बाय वन पर्सन एंड देन ही स्टार्टेड. उसका एज हो गया था, इट वॉज लाइक मोर देन 40 हो गया था, बट जब उन्होंने डेट करना चालू किया, जब उन्होंने मिलने चालू किया था उन्होंने, उसके बाद भी मैंने देखा कि ही इज़ वेरी मच क्लिंगिंग इन टू दैट पास्ट और ही वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट सेम गर्ल. ओके, जो उनकी प्रीवियस गर्लफ्रेंड थी. तो प्रॉब्लम है इसकी, जब आप उस प्रोजेक्शन से देख रहे हो और फिर ये भी बोल रहे हो आके कि मुझे अच्छा तो लग रहा था बात करके, बट मुझे कुछ टाइम के बाद लगा कि ये भी मुझे छोड़ के चली जाएगी. यू नो दैट सेंटेंस, ये भी मुझे छोड़ के चली जाएगी. ये भी मुझे छोड़ के चली जाएगी बिकॉज ऑफ नॉट हर. ये भी मुझे छोड़ के चली जाएगी बिकॉज आई फियर इट. यू नो दैट कार्ड दैट आई रीड इट, कि आप बहुत टाइम पे ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होते हो जो आप डर रहे होते हो. तो आपकी इनर फीलिंग एक ऐसा डर पैदा कर रही है कि क्योंकि वो मुझे छोड़ के चला गया था, तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये बंदा भी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा. Why not to have that faith and believe कि वो मुझे छोड़ के चला गया था, उसकी गलती, उसकी प्रॉब्लम. अब मुझे क्यों छोड़ के कोई जाएगा? अगर भी जाएगा तो भी क्या मैं सबको बांध के रख सकती हूँ? क्या मैं सबको कंट्रोल में रख सकती हूँ? नहीं ना. सो वाई नॉट टू टेक केयर ऑफ दैट एनर्जी कि व्हाट इज राइट नाउ विथ मी, कि लेट मी एक्सप्लोर दैट थिंग कि सच में क्या ये लड़की वही है? क्या सच में ये प्रॉब्लम जो है मैं सोच रहा हूँ जैसे या वैसा है? नहीं है ना. तो फिर आप उसको थोड़ा सा डिफरेंट नजरिए से देखना चालू करो. तो वेरी मच द वेरी मोमेंट योर परसेप्शन इज गोइंग टू चेंज ना, वो प्रॉब्लम की डेंसिटी, इंटेंसिटी सब चेंज हो जाएगी और आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आप डिटैच होके ये जितनी चीज़ें आपको कार्ड ने गाइड किया था कि लेट गो लेट गो लेट गो लेट गो, ये सारे लेट गो आप करोगे. और उसी में से ही जैसे आप ये दोनों चीज़ करोगे, आप जैसे ही लेट गो करोगे इस पास्ट को, आपको वो सही लोग, वो सही प्यार, वो सही आदमी, वो सही गाड़ी, वो सही घर, वो सही बच्चा, वो सही जॉब, वो सही प्रमोशन, सब कुछ सही दिखेगा क्लैरिटी के साथ कि यू आर गोइंग थ्रू अ रॉन्ग पाथ. नाउ यू आर कमिंग बैक टू योर सेल्फ. नाउ यू आर कमिंग बैक टू यू. नाउ यू अंडरस्टैंड यू एंड नाउ यू कैन स्टार्ट हैविंग दोज थिंग्स जो कि आप चाह रहे थे, जो कि आप पाना चाहते थे, और आपको वो चीज़ मिलेगी. वो कम्युनिकेशन, वो रिलेशनशिप, वो हेल्थ, वो परिवार, वो घर, वो शादी, वो सब जो आप ढूंढ रहे थे. सो इट इज़ द वेरी मोमेंट द कार्ड्स आर गाइडिंग यू कि आप अपनी एनर्जी को ध्यान रखिए. डोंट क्लिंग ऑन टू दिस पास्ट. आप पास्ट को एक डेड पास्ट की तरह छोड़ दिए. इट इज़ डेड. पुरानी चीज़ों को उखाड़ उखाड़ के आप कुछ नहीं मिल सकता है. वहाँ पे डेड का मतलब होता है डेड. उसको आप फिर से जिंदा करके नहीं लेके आ सकते. इट इज़ अ लेसन फॉर यू. टेक दैट लेसन एंड लीव इट विद अ हैप्पी हार्ट कि येस आई लर्न माई लेसन. आई ब्लेस यू. स्टे हैप्पी वेर एवर यू आर एंड लेट मी स्टे हैप्पी वेर एवर आई एम. और इसी खुशी के साथ, इसी ब्लेसिंग्स के साथ उनको जाने दीजिए. आपकी एनर्जी से लेट इट गो. अगर आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाते हो, आपको अगर हेल्प चाहिए, देन यू कैन स्टार्ट डूइंग योर मेडिटेशंस अगेन. आप मेरे साथ कॉर्ड कटिंग सेशंस के लिए भी बैठ सकते हो. कॉर्ड कटिंग सेशंस हेल्प यू आउट इन सो मेनी वेज. मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आई शेयर दिस लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. आप उस सेशन में आप फील कर सकते हो कि आपकी एनर्जी इतनी बैलेंस हो जाएगी कि ऑटोमेटिकली आप जितने भी एनर्जी वैम्पायर्स के साथ जुड़े हुए थे, आपके कॉर्ड्स जुड़े हुए थे और आप प्रॉब्लम में फंस रहे थे, उस सारे प्रॉब्लम से आपको बाहर निकलने के लिए एक सिचुएशन मिलेगा, कुछ रास्ते मिलेंगे, कुछ लाइट मिलेगी और आप उसमें से बाहर निकल पाओगे. तो अगर आपको ये सारे रीडिंग्स अच्छे लगे, आज की ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन 1111 टू क्लेम दिस एनर्जी. एंड with this, I'm sorry, please forgive me. Thank you and I love you all. Take care.